अभी हम खड़े हैं गुलमर्ग में और यहाँ पे आप स्नो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। Greetings to everyone watching this video. Melodious Musafir welcomes you all back to another thrilling chapter of our Kashmir winter escapade. It's day 3 and today we find ourselves in the enchanting realm of Gulmarg, a true winter wonderland draped in a pristine white embrace. ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ साफरान यहाँ पे निकलता है। मैं आपको पहले स्मेल टेस्ट करवाऊंगा। हाँ करो। इसकी जो स्मेल रहती है वो ऑर्गेनिक रहती है, वो नेचुरल चीज रहती है। আমরা ওই উপর থেকে অনেক করতে হরকাতে এখানে এসেছি, এরপর জানি না কি হবে। Before starting this video, let me show you a recap of Sonmarg. In the previous vlog, I covered the series of events that led to us being scammed by the snow bikers and the moments we enjoyed despite the unfortunate incident. If you haven't already watched that video from Sonmarg, be sure to check it out. I'll provide the link in the cards and video description. After an incredible time exploring the winter wonderland of Sonmarg, it's time to continue our adventure to yet another breathtaking destination, Gulmarg. As I am structuring the Kashmir videos in a serial manner, I suggest you to watch them in sequence from the playlist so that you get to know the detailed itinerary. To visit Gulmarg and Drang waterfall, you have to book a separate cab for 2500, which includes an amount of 500 for the guide. You can't reserve a cab without the guide, as the cab union has imposed these unnecessary regulations in Gulmarg to extort money from the tourists. The distance from Srinagar to Gulmarg is about 51 kilometers, and on the way we halted by the Drang waterfall, which is one of the hot spots that remains completely frozen during peak winters. Drang waterfall can only be accessed through ATV or the chained taxis that can be availed from Tangmag. However, it's not required to hire these taxis during summer. तो अभी मेरे पीछे आप जो ये वाटरफॉल देख रहे हो, ये ड्रंग वाटरफॉल, ये गुलमर्ग में है और गुलमर्ग से एक शेयर्ड कैब करके हम यहाँ पे आए हैं, जिसका अलग से फेयर लगता है। ये विंटर्स में कम्प्लीटली फ्रोज़न होता है, बट अभी पानी का बहाव है इसमें। Please watch this video till the end and show your support so that new channels and YouTubers like me can gain the desired exposure.
The Drang waterfall is an artificial cascading waterfall set amidst majestic mountains located in the Tangmarg Tehsil of Gulmarg. The waterfall plunges from a height of about 30 meters, creating a refreshing mist that enhances the natural charm of the area. The cascading waterfall mixes with the water that originates from the magnificent glaciers, making an unforgettable sight. After spending a blissful time together, we collected a lot of memories in the form of photos and videos and finally resumed our journey to the ultimate destination, Gulmarg. The final stretch to Gulmarg, the Meadow of Flowers, is a passage into a dreamlike paradise where rolling hills and snow-draped peaks invite travelers into nature's serene sanctuary. As we passed through Tangmarg, the air grew crisper, the scenery shifted between wildflower meadows in summer and a pristine white wonderland in winter. As winter unfolds its magic, Gulmarg's meadows transform into a celestial realm of snow and silence. Nestled in the heart of the Pir Panjal range, Gulmarg is a paradise of rolling meadows, towering pines, and snow-capped peaks that stretch as far as the eye can see.
The crisp mountain air carries a serene stillness, broken only by the distant laughter of travelers and the gentle whisper of the wind weaving through frost-laden trees. ওঠ তুলছি আমি ওঠ দুটো হাতি ধর হ্যাঁ The rolling pastures, once a canvas of green, now rest beneath a soft, untouched blanket of white, glistening like powdered silver under the morning sun. Each snowfall breathes new life into this wonderland, turning winding trails into meandering ribbons of ivory. Snowflakes descend like delicate whispers from the heavens, draping the land in an ever-deepening embrace of winter's artistry. थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो रहा है गुलमर्ग में स्नोफॉल हो रहा है एंड वो ऊपर जो टेंपल दिख रही है आपको वहाँ पे हम चढ़े थे शिव का टेंपल है वो और काफ़ी स्लिपरी सीढ़ियाँ हो गई है इसलिए लोग पास से स्लाइड करके आ रहे हैं The meadows awaken with the thrill of adventure. Skiers and snowboarders carve graceful arcs across the pristine slopes. दिल खुश हो गया यार आके ताज़ा स्नोफॉल देखने को मिल गया थोड़ा थोड़ा हो रहा है बट स्टिल हो रहा है यार वी आर लकी इनफ टू विटनेस स्नोफॉल इन गुलमर्ग This is Gulmarg in winter, a dream sculpted in ice, where every snowflake tells a story and every moment feels like a whispered lullaby from the mountains. As the sun dipped behind the majestic Pir Panjal peaks, Gulmarg was bathed in a golden glow. The sky transformed into a breathtaking canvas of crimson and amber, casting long shadows over the rolling landscapes. With hearts full of memories and souls enriched by nature's splendor, we bid a wistful farewell to this paradise. As we took one last glance at the enchanted meadows, we knew that Gulmarg's beauty would forever remain etched in our hearts like a dream that never fades. Last but not the least, we went to buy some of the most famous delicacies and products for which Kashmir is renowned for. जहाँ पे आप खड़े हो ना इसको बोलते हैं लतपोरा पामपोरा। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ साफरान यहाँ पे निकलता है। हमारी खुद की जमीन रहती है, हमारी खुद की लैंड रहती है, हम खुद इसके ग्रोवर हैं। अपनी जमीन से सैफरान को लाते हैं और यहाँ पे आपके सामने रखते हैं। सैफरान जो है ये सूंघने से ही पता चली जाती है या सैफरान सही है या गलत है। मैं आपको पहले स्मेल टेस्ट करवाऊंगा। हाँ करो।
इसकी जो स्मेल रहती है वो ऑर्गेनिक रहती है, वो नेचुरल चीज रहती है। वो एक कंपनी है ना लायन के सर, ये यहाँ पे कोई कंपनी नहीं, आप ग्रोवर के सामने, आप लैंडलॉर्ड के सामने हो। এটা পুরো কেশোনার हाँ, अब मैं बताऊंगा कि सैफरान की पहचान क्या रहती है। सैफरान को अगर हम किसी भी लिक्विड फॉर्म में डालेंगे, जैसे कि पानी या दूध या खीर, सैफरान है खुद रेड। सैफरान जो खुद रेड रहता है, मगर जो अपना ये कलर छोड़ देता है वो पीला छोड़ देता है, लिक्विड फॉर्म में पीला देता है। खुद रेड रहता है मगर कलर देता है पीला। जो ओरिजिनल की पहचान रहती है ना, जैसे कि हमने सुबह इस पानी में डाल दिया, सैफरान है खुद रेड मगर इसने कलर छोड़ दिया, इस पानी में कौन सा पीला दे दिया। आपने इतना सा सैफरन डाला और पूरा पानी पीला हो गया? अरे बढ़िया है। पूरा पानी पीला। यहाँ पे कितना सारा सैफरन डाला? मैंने डाला इसमें 5 या 6 पत्तियां डाल दी। 6 पत्तियां। हाँ, ये जो सैफरान है इसकी दूसरी पहचान रहती है, अगर हम जिप पे डालेंगे सैफरान को, इसको अगले वाले दांतों से च्यू करना होता है, चबाना होता है। इसका जो टेस्ट आता है लिटिल बिट रॉक टेस्ट है, हल्का सा कड़वापन आता है सैफरान। सैफरान कड़वा होता है, मीठा नहीं होता। डुप्लीकेट सैफरान क्या होता है, वो मक्की का घास ब्लीच करके होता है। जो मक्की का घास को यहाँ से कलर देंगे वो वापस वही कलर देगा। जैसे कि इसने यहाँ पे कौन सा कलर दे दिया, येलो, अगर वो वाला सैफरान इसमें डाल देंगे तो वो रेड से रेड ही देगा। जो कलर यहाँ उसको यहाँ से दिया हुआ होगा वो वापस वही देता है। मतलब ब्लीच उठ के मतलब पानी में मिल जाता है। हाँ, वही नेचुरल रहता है येलो, ये येलो कलर देता है। सैफरान जो है तीसरी पहचान इसकी ये रहती है, अगर हम सैफरान को किसी भी चीज में इस्तेमाल करेंगे, सैफरान कभी कभार घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं हो जाता है, ये फ्लोट रहता है ऊपर, तैरता है ऊपर, नीचे नहीं जाता है, डूब नहीं जाता। ये सैफरान की पहचान रहती है। सैफरान जो है, सैफरान आई साइट के लिए अच्छा रहता है, आई मस्कुल्स के लिए अच्छा रहता है, हार्ट फंक्शन के लिए अच्छा रहता है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। खासकर जो ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे बेस्ट रहता है। प्रेग्नेंट लेडी 9 महीने तक बराबर सैफरान लेगी, कल बच्चा हेल्दी भी आता है और गोरा भी आता है। ये हो गए सैफरान की पहचान। लेना कब है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, दूध के साथ 6 या 5 पत्तियां डाल के दूध के एक गिलास में वही पानी पीना होता है। और कौन लग रहा हाँ। सैफरान के बाद हमारे पास आता है शिलाजीत, गॉड गिफ्ट मेडिसिन। बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। 15 साल की उम्र के बाद चाहे मैन हो या वुमेन हो, वो इसे ले सकता है। ये अंदर से मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जो बैड फैट रहता है हमारी बॉडी में वो इससे बर्न हो जाता है। चाहे नी पैक, बैक पेन, जॉइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, शुगर पेशेंट, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए यही चीज लग जाता है। ये अंदर से मेटाबॉलिज्म को तेज, ये अंदर से एनर्जी को बूस्ट कर देता है। जो भी वीकनेस रहती है ना हमारी बॉडी में, वो सारी खत्म हो जाती है। किसी भी पार्ट में अगर होगा, बॉडी में कोई भी पार्ट अगर कमजोर होगा ना, बॉडी में कोई भी पार्ट अगर वीक होगा ना, उसको ये एनर्जी देगा। ये आपको कहाँ से मिलती है? ये यहाँ के सुनो मेरे बात, ये हमें मिलता है, ये यहाँ के पहाड़ों से निकलता है। बड़े बड़े जो पहाड़ रहते हैं यहाँ के, वहाँ पे जब वो गर्म हो जाते हैं ना, जून जुलाई अगस्त में निकलता है ये चीज। वो जब पूरे गर्म हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कोई पत्थर होता है, हर कोई पत्थर नहीं, हर कई जगह नहीं मिलता है। यहाँ से बंदे जाते हैं, कम से कम 10 दिन लग जाते हैं उनको वहाँ से आने में। फिर वहां से जब आता है, ये आता है पत्थर शेप में आता है, फिर उसको जैसे कि यहाँ पे है ना, इसी शेप में आता है। फिर उसको मतलब हीट देना पड़ता है, कम से कम 24 घंटा इसको हीट देना पड़ता है। जो हीट में से वो पसीना निकलता है वही होता है शिलाजीत। बाकी जो कैंकर वंकर है इसको फेंकना पड़ता है, यही होता है शिलाजीत। इसको बोलते हैं यहाँ पे ब्लैक गोल्ड, सैफरान को बोलते हैं रेड गोल्ड। ये जो सैफरान है ना, ये कभी कभार खराब नहीं हो जाता है। सिर्फ 3 चीजों से सैफरान को बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना, फ्रिज में नहीं रखना, गीले हाथों से इस्तेमाल नहीं करना। बाकी हमारी गारंटी 20 साल तक रहती है सैफरान की। अगर आप चाहोगे ना 10 साल तक हमारा सैफरान यूज करोगे, जैसे कि आपने 100 ग्राम का पैक ले लिया, जैसे कि आपने 50 ग्राम का पैक ले लिया, आपने आधा उसमें इस्तेमाल किया। अगर आप ऐसा चाहोगे कि अब मैं इतना ही इस्तेमाल करूंगा, बाकी मैं वापस भैया को पार्सल भेजूंगा, भैया मुझे पैसा वापस कर दो, इतना जो सैफरान मुझे बचा हुआ है इसका मुझे पैसा वापस कर दो। जो उस समय रेट होगी ना सैफरान की, आपको बराबर वही रेट मिलेगी, जितना सैफरान बचा हुआ होगा उतना का रेट वापस मिल जाएगा आपको। गोल्ड की तरह बराबर, इसको बोलते हैं इसीलिए रेड गोल्ड, इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ये काला सोना रहता है, ये लाइफ में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना होता है, बार बार। इसका
हाँ बोलिए। हाँ, इसकी जो प्रॉपर डोजेज रहती है, पहले मुझे बताने दीजिए। इसको जल्दी है बोलिए। इसकी जो भैया देखिए उनका बहुत क्वेश्चन है ना। हाँ। तो वहाँ पर गर्मी बहुत है। हाँ। तो तब भी फ्रिज में नहीं स्टोर करना है ये सैफरन को। अरे नहीं भैया, के बारे में ये बाहर रखो, ये कवर्ड में रखो, अलमारी में करो, खुले में रखो। सैफरन कभी कोई बात नहीं। अगर आप फ्रिज में रखोगे ना, कहीं से मतलब ढक्कन खुला रह सकता, कभी कभार खुला रहे, इसमें मॉइस्चर आ गए तो ये खराब भी हो सकता है। डायरेक्ट सनलाइट से भी होता है। कभी भी सैफरन का ढक्कन खोलोगे, जो स्मेल आपने यहाँ से सूंघ ली, वही स्मेल आपको उस समय भी मिलेगी। ये जो शिलाजीत है ना, इसका प्रॉपर डोजेज रहती है 100 ग्राम की। मगर एक नॉर्मल इंसान के लिए, जिसको किसी पार्ट में दर्द होगा, उसको सिर्फ एक बार लेना है। एक बार ले लिया, दोबारा नहीं लेना है। अगर आपको जिम के लिए चाहिए, ये एनर्जी को बूस्ट करता है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देता है अंदर से। और हमारी सोप भी आती है सैफरन की, रेड चिली पाउडर आती है, हनी आता है सैफरन का। सैफरन का प्राइस बोलिए। सैफरन का प्राइस 300 पर ग्राम। इसकी जो पैकिंग रहती है हमारे पास, हाँ 5 ग्राम की रहती है, 10 ग्राम की रहती है, 20 ग्राम की रहती है। शिलाजीत की पैकिंग रहती है 100 ग्राम की रहती है, 250 ग्राम की रहती है सर जी, और 50 ग्राम की रहती है। ये जो 50 ग्राम का हमारे पास आता है, ये ट्रायल बेस पे आता है। जैसे कि कभी कभार पहले बोलते हैं ट्रायल करें, ये ट्रायल पे, क्योंकि ये अपना असर दिखाता है 15 दिन के बाद शिलाजीत। अगर हम शिलाजीत को किसी भी मेटल पे लेंगे, फिर नीचे से जलाएंगे, शिलाजीत अपनी जगह राख जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, टपकना नहीं चाहिए गुण की तरह। अगर ये टपक गया फिर तो ये डुप्लीकेट रहती है। ये देख, दिखाऊं? डेमो दिखा, डेमो में दिखाऊंगा। इतना छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया शिलाजीत का। तुम्हें देखना है बड़ी जल्द। देखो देखो भैया, अब मैं इसको हीट दे दूंगा नीचे से, ये अपनी जगह फूल जाएगा, राख हो जाएगा, गिरेगा नहीं। তুই যেটা খেয়েছিলি সেটা পড়ে যেত কিন্তু কমার ছিল না পড়তো না ওটা देखा भैया, আমার এনার্জি ছিল অনেক देख देख हाँ हाँ देखा भैया, इसको किसी ने सिलाजी खिला दी उसकी एनर्जी कम हो गई। बेरी आती है, हीमोग्लोबिन बढ़ा देती है। ये जो चीज लेमन बेरी आती है, फैटी लिवर के लिए लग जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैकबेरी, खून में इन्फेक्शन खत्म करने वाली आइटम। उसके बाद हमारे पास आता है चेरी, कैल्शियम बढ़ा देती है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रैनबेरी, एक तो ये डाइजेशन के काम आती है, और खुदा ना खासा पथरी वथरी होती है अंदर से, उसको भी ये क्रैश कर देती है। उसके बाद हमारे पास आता है मोमरा बादाम। ये जो हमारे बादाम रहते हैं, ये ऑयली रहते हैं, विद ऑयल रहते हैं। तुम्हारे वहाँ पे मिलते हैं कैलिफोर्निया वाले बादाम, उनके पास मशीनरी रहती है, वो अपने बादाम को हीट अप करके तेल निकालते हैं। वो अपने प्रोडक्ट से 2 फायदे उठाते हैं, एक अलग से ऑयल भी, एक अलग से बादाम भी बेचते हैं। मगर उनका बादाम खा के आपको कोई फायदा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो भी मात्रा होती है वो तेल में होती है। तेल से ही मेमोरी भी बढ़ जाती है, तेल से आंखों की बीनाई भी बढ़ जाती है, तेल से ही मेमोरी भी बढ़ जाती है, तेल से मेमोरी। भैया इसको आधे को खाओ, आधे को यहाँ पे क्रैश करो पूरा जोर लगा के, यहाँ पे फिर देखना तेल निकलेगा कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है वालनट गिरी, मैं करूंगा। उसके बाद हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं वालनट गिरी, ओमेगा 6 बढ़ाने वाला आइटम, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर देता है, और हार्ट फंक्शन को भी। अखरोट की गिरी भैया, ये हमारा नेचुरल रहता है, ये प्लेनेरिया के अखरोट रहते हैं। इसका जो टेस्ट रहता है 12 महीने तक सेम रहता है। हमारे पास आते हैं जंगल वाले भी अखरोट, उनका टेस्ट 6 महीने तक रहता है, उसके बाद थोड़ा चेंज होता है। हाँ। उसके बाद हमारे पास आता है मोस्टली ब्रेकफास्ट वाला आइटम। सारे ड्राई फ्रूट इसमें रोस्ट करके होते हैं विद कश्मीरी आटा, ये सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। और आता है हमारे पास सैफरन ऑयल, बाई नेचुरली के बगैर इन्फ्यूजर ऑयल रहता है। बाई नेचुरली के बगैर अगर बॉडी में कोई भी दाग आ जाए उसके लिए लग जाता है, हेडेक के लिए लग जाता है, हेयर फॉल के लिए लग जाता है, या इंटरनल में बच्चों को ग्रोथ बढ़ाने के लिए लग जाता है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए कैसे लग जाता है? छपकर आसमा, बच्चों को दूध के साथ 1-1, 2-2 ड्रॉप पिला के उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और मेमोरी भी बढ़ जाती है इस चीज से। ये इंटरनल में भी काम आता है और एक्सटर्नल में भी काम आता है। कभी कभार टेंशन वेंशन रहता है, हाँ, बेस्ट स्लीपिंग एंड माइंड स्ट्रेस के लिए ये चीज, लेवेंडर ऑयल
नेट पे भी निकाल सकते हो। लैवेंडर ऑयल। हाँ, इनका मसाज करना होता है, फोरहेड या इससे दिमाग पे एक बार करना होता है, smell कंटिन्यूअसली रिलैक्स मिल जाता है। We ended our day by heading towards Pahalgam, from where we will be resuming the forthcoming episodes of this series. Stay tuned, as those chapters will be filled with much more thrill and adventure. Please do like, comment and share this video if you have watched it till here, and also don't forget to subscribe to the channel for future updates.